So according to Faraday's law, EMF induced across a coil, across a closed loop, whenever we are trying to change the flux. So according to Faraday's law, E is what? D phi by dt. That EMF induced across this coil is what? Rate of change of magnetic flux. And when Lenz law is used, then it is minus d phi by dt, because that EMF is induced. The EMF which is induced across this coil, it is induced in a direction which opposes its own induction. यहाँ पे जो current induced होता है वो खुद के induction को ही oppose करता है. Clear? So that we have to change that flux forcefully. Forcefully we have to change that flux. So whatever work is done, whatever mechanical work is done, that work is developed. Yeah, that is work is formed in the that work is developed in the form of electricity. Clear? So whatever work is done, that work is converted into electricity, you can say. So E is equal to minus d phi by dt. That was the Faraday's law. Now in a coil, what is what the concept of self-induction? Suppose if we have a coil, this is a coil. If it is connected with a battery, so I have two options. I can connect it by a DC volt or by an AC volt. So suppose if I am connecting it by DC volt, this is the voltage V. So यहाँ पे current flow करेगा because it is connected with the battery. So at the beginning only, यहाँ पे जैसे current flow करेगा, it gets magnetized because of flow of current. It gets magnetized. So when current flows, it gets magnetized. So यहाँ पे when it gets magnetized, so across this loop, ये जो loop का area उससे एक flux pass करेगा. Clear? And that flux is because it is magnetized, तो current पे depend करता है. That flux depends on the current which is flowing in this coil. Starting में क्या होगा? At t is equal to 0 पे, it offers, that inductor offers infinite resistance at the beginning only, because we are trying to change the flux across this coil. Now, this coil में when current flows across this coil, it gets magnetized. So we are trying to change that change the flux across this loop. पहले तो ये magnetized था ही नहीं, अभी वो magnetized हुआ तो यहाँ पे एक flux develop हो गया. Basically we are trying to change the flux. 0 से हम एक certain value तक जा रहे हैं, तो ये अपोज करता है हमको. ये मतलब यहाँ पे EMF इंड्यूस नहीं होना चाहता. तो एट द बिगिनिंग ओनली इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 0. आफ्टर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट इंडक्टर इज 0. मतलब स्टार्टिंग वो बहुत अपोज करता है. सो करंट की वैल्यू डिक्रीज, करंट की वैल्यू कीप ऑन डिक्रीजिंग. एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम इट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे जो करंट का ग्रोथ होता है इसमें, the current changes like this, I and t. With time current increases, and once that current is at its saturation state, अब current saturated हो गया तो वो constant हो जाता है. तो उस टाइम पे कोई flux में change नहीं आता, because when current is constant, magnetic field is constant. यहाँ पे current क्या हो रहा है? increase कर रहा है, तो magnetic field is increases, so flux is variable at the beginning. When current increases, because स्टार्टिंग में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर किया, फिर धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है. व्हेन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, व्हेन रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट इंडक्टर डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस. व्हेन करंट इंक्रीजेस, फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड, because that field it gets magnetized because of the flow of current. More current, more magnetic field is developed. So when current increases, magnetic field increases, so flux increases. So EMF is induced. but यहाँ पे क्या हो गया? करंट कांस्टेंट हो गया. when current is saturated, so current is constant. when current is constant, field is constant. फील्ड कांस्टेंट होगा तो इवन फ्लक्स इज कांस्टेंट. व्हेन फ्लक्स इज कांस्टेंट तो नो ईएमएफ. क्लियर? तो स्टार्टिंग में ईएमएफ डेवलप होता है, बाद में वंस करंट इज सैचुरेटेड यहाँ पे कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होता. इसलिए वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम अपोजिशन शो करता है. जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हियर वी आर कनेक्टिंग अ डीसी वोल्टेज. सो व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड, एट द बिगिनिंग इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. वो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं करना चाहता, हम उसके फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं. व्हेन वी आर मैग्नेटाइजिंग इट, बेसिकली वी आर चेंजिंग द फ्लक्स अक्रॉस दिस लूप. तो वो अपोज करता है. स्टार्टिंग में मैक्सिमम अपोजिशन शो करता है. एट द बिगिनिंग ओनली, एट t इज इक्वल टू 0 इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. लेकिन टाइम के साथ, व्हेन टाइम इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है. व्हेन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट इंडक्टर डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजेस, तो EMF इज इंड्यूस्ड. बट एट लास्ट व्हेन करंट इज सैचुरेटेड, जब करंट कांस्टेंट हो जाता है, मतलब मैक्सिमम, जब वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो एट दैट टाइम करंट इज मैक्सिमम. So when current is constant, magnetic field is constant, flux is constant, so no EMF is induced. मतलब starting में EMF आएगा, बाद में EMF नहीं आएगा. Clear? So it is when it is connected with DC, its current का growth is like this, and the EMF which is induced, the EMF which is induced across this coil, EMF
is directly proportional to di by dt. क्लियर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, करंट चेंज हो रहा है, सो फ्लक्स भी चेंज होगा. सो ईएमएफ इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीआई बाय डीटी. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इज व्हाट डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. बट यहाँ पे जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? फ्लो ऑफ करंट पे. बिकॉज व्हेन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड देन ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स इज डेवलप अक्रॉस दिस कॉइल. सो करंट की वजह से ही फ्लक्स आ रहा है. सो व्हेन करंट इज वेरिएबल फ्लक्स इज वेरिएबल. सो ये ईएमएफ इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. Or when you are removing this proportionality, so EMF is equal to L, that is self inductance, di by dt. So EMF induced across this coil is what? L di by dt. If you are using Lenz's law, तो यहाँ पे हम माइनस साइन पुट कर देते हैं. So EMF is what? minus L di by dt. This minus sign indicates, that's why it is called back EMF. ये मतलब एक अपोजिशन है, अपोजिट डायरेक्शन में EMF डेवलप कर रहा है. It is called back EMF. Well, because that EMF which is induced, it is in opposite direction. It opposes the direction of induced EMF, opposes its own induction. जिस reason से वो induced होता है. Clear? So that is what, that's why minus sign is here is equal to minus L di by dt. That minus sign indicates it is back EMF. ये इस EMF के against ही develop होता है. So EMF induced across this coil is directly equal to di by dt. अब यहाँ पे देखो हमने किसी मैग्नेट को, we are not using any external magnet, कि हम किसी मैग्नेट को इस कॉइल के पास में नहीं ले जा रहे हैं, ना इससे दूर ले जा रहे हैं. मतलब we are not using any external magnetic field. That's why it is called self induction. ये जो कॉइल है ये अपने खुद के फील्ड को यूज कर रहा है ना. This magnetic field which is developed across this, ये कॉइल का अपना ही खुद का फील्ड है. क्लियर? इसके पहले हम लोग क्या करते हैं? सपोज इफ देयर इज अ कॉइल एंड वी आर ब्रिंगिंग अ मैग्नेट क्लोजर टू दिस कॉइल. सपोज ये कॉइल होता है, वी आर नॉट कनेक्टिंग दिस कॉइल विद अ बैटरी एंड वी आर ब्रिंगिंग अ मैग्नेट क्लोजर टू दिस कॉइल. So in that case that magnet has external magnetic field. So when you are bringing that magnet closer to the coil, तो मैग्नेट का एक एक्सटर्नल फील्ड उस कॉइल के पास आ रहा है ना, एक्सटर्नल फ्लक्स आ रहा है अक्रॉस दैट कॉइल. तो उस केस में दैट कॉइल इज नॉट मैग्नेटाइज्ड. क्लियर? यहाँ पे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. मतलब ये जो कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स यूज कर रहा है, इट इज गोइंग टू यूज इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स. ये अपने ही फ्लक्स को यूज कर रहा है. द फ्लक्स व्हिच इज इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस, द फ्लक्स व्हिच इज डेवलप अक्रॉस दिस कॉइल ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट. तो पहले क्या हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो गया. नाउ बिकॉज़ दैट करंट इज वेरिएबल, व्हाई करंट इज वेरिएबल? बिकॉज़ इट ऑफर्स वेरिएबल रेजिस्टेंस. स्टार्टिंग में वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम अपोजिशन शो कर रहा था, बाद में धीरे-धीरे अपोजिशन कम हो गया. At the beginning only it offers maximum resistance, that's why at the beginning current is 0. फिर टाइम के साथ when resistance decreases, resistance across that inductor decreases, current की वैल्यू increase करेगी. When current increases, field increases. So there is a change in field because of change in current. Clear? So current changes, so field changes, and due to change in field, there is a change in flux, so EMF is induced. So this coil is going to use its own magnetic field. It is not using any external magnetic field. हम इसको ऐसा नहीं कर रहे कि इस coil को एक external magnetic field में move कराएं. मतलब पहले से suppose एक magnetic field है, and we are not moving this coil in that external magnetic field. This coil is not using any external magnetic field. It is using its own magnetic field. That's why it is called self induction. मतलब अपने खुद के magnetic field को change करके वो EMF induced कर रहा है. Clear? अब जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है और कोई स्टूडेंट खुद से ही पढ़ रहा है, तो सेल्फ स्टडी क्यों बोलते हैं? अगर हम खुद से ही पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी. ठीक है? मतलब हम उसको अपने से ही पढ़ रहे हैं, सारा प्रिपरेशन खुद से ही कर रहे हैं, तो दैट इज सेल्फ स्टडी. यहाँ पे यही है, ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा है. सो बट द ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड दैट इज बैक ईएमएफ माइनस एल डी बाय डी. ये ईएमएफ इंड्यूस करना नहीं चाहता, बस उसकी मजबूरी है कि इज कनेक्टेड विद अ बैटरी. It gets magnetized and because of that variable current, magnetic field is variable, so EMF is induced. So EMF is what? L di by dt. Clear? Here, this if you are connecting it with a inductor, with a DC volt. If you are connecting it with AC, अगर हम इसको AC से connect करते हैं, the current which is variable. So DC और AC में क्या होता है कि starting में current vary करेगा, last में फिर saturate हो जाता है when it is connected with DC. If you are connecting it with AC, अगर AC source से connect करोगे, तो उसमें क्या होता है, करंट एक ही सेकंड में बहुत बार चेंज होता है, रैंडमली दैट वोल्टेज विल बी चेंजिंग. सो इन दैट केस आल्सो सेम एक्सप्रेशन इज यूज्ड. विद एसी, इफ यू आर कनेक्टिंग इट विद एसी, सेम कॉइल मैं एसी से कनेक्ट कर रहा हूं, द वोल्टेज व्हिच इज वेरिएबल इन 1 सेकंड ओनली, सो मेनी टाइम्स 50 100 साइकिल्स वो बनाएगा. तो दिस इज एसी वोल्ट.
तो यहाँ पे करंट का ग्रोथ ऐसे नहीं होने वाला, बिकॉज वो ऐसा नहीं होता, वो एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जीरो, तो जीरो होगा, फिर मैक्सिमम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, लाइक दैट. So this AC volt, this is what self inductance. So again here also EMF, same expression is used. EMF is directly proportional to di by dt. Again same expression, EMF is equal to L di by dt, and if you are using Lenz law you have to put minus sign here. So this is what EMF induced. Same EMF is induced, same back EMF is induced if it is connected with AC. But AC में क्या फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, ये वेरी करता रहता है. When voltage is variable, current is also variable across this coil. The EMF which is induced across this coil, that is also variable. So EMF is what? L di by dt. जो करंट की वैल्यू, ऐसा नहीं कि वो करंट सैचुरेट होकर कांस्टेंट होता है. करंट इज ऑलवेज वेरिएबल. वी आर कनेक्टेड AC वोल्ट, सो वेरिएबल करंट इज देयर. तो अगर I हम लेते हैं, इट इज वेरिएबल फ्लक्चुएटेड करंट है, so that we can write I naught sin omega t. Because we have connected it with the AC volt. तो एक अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब जो फ्लक्चुएट हो रहा है वेव के जैसा. क्लियर? सो I is equal to I naught sin omega t. This is the first. Now if you are finding the voltage, so EMF is equal to what? L di by dt. So L di by dt. If you are differentiating this, what we are going to get? I naught omega cos omega t. This L I naught omega, so what we can write, EMF is equal to L I naught omega को हम पीक वैल्यू बोल सकते हैं, E naught cos omega t. So this way, when current is fluctuated, एक ही सेकंड में so many cycles are formed, current fluctuate कर रहा है. यहाँ पे ऐसा सैचुरेट होके कांस्टेंट नहीं हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में करंट जीरो था, बाद में करंट मैक्सिमम होके फिर कांस्टेंट हो गया, वैसा नहीं होने वाला. वो एक ही सेकंड में बार बार वाइब्रेट कर रहा है. क्लियर? इट इज फ्लक्चुएटिंग. It is not like DC. DC में क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट जीरो होता है, फिर करंट इंक्रीजेस और it achieves its maximum value, फिर वो करंट कांस्टेंट हो जाता है. तो एट दैट टाइम नो बैक EMF इज इंड्यूस्ड, बिकॉज़ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट कॉइल इज कांस्टेंट, तो EMF वहां पे नहीं रह जाता. मतलब स्टार्टिंग में EMF रहेगा, बाद में EMF जीरो हो जाता है. लेकिन व्हेन इट इज कनेक्टेड विद AC, सो इन ईच सेकंड करंट इज फ्लक्चुएटिंग लाइक अ वेव. I is equal to, I have used sin omega t because यहाँ पे AC सोर्स मैंने. When current is variable, एक ही सेकंड में वो बार बार वेरी कर रहा है, so voltage भी वैसे ही वेरिएबल होगा. जैसे जैसे करंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा. But there is a phase difference because करंट में हमारा क्या है, I naught sin omega t, and voltage में what we are getting, E naught cos omega t. So there is a phase difference between current and voltage. करंट में हमारा sin omega t, वोल्टेज में cos omega t. So the phase difference between these two is what? 90 degree. See here, it is sin, it is cos. So cos leads sin by 90 degree. तो जो वोल्टेज आता है, वोल्टेज का फेज करंट से 90 आगे रहता है, मतलब वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2. वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. तो यहाँ पे जो वोल्टेज का ग्राफ होता है, वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है, वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है, वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है. So I is equal to I naught sin omega t. We are not using any DC source, we are using AC source. AC में करंट फ्लक्चुएट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करता रहेगा. The current, how that current is variable, in the similar way voltage is also variable. So but expression same, back EMF का expression same we are using here. EMF is equal to minus L di by dt. And why it is called self induction? Because that EMF is induced because of its own magnetic field. वो खुद के magnetic field से EMF induce कर रहा है. Clear? अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि फिर हम कर क्या रहे हैं basically. We are connecting a battery, we are connecting AC source, and here also an EMF is induced, that is also AC. जो यहाँ पे EMF आया वो भी AC ही है. Clear? So why we are doing all this? We are magnetizing this coil. मतलब first by connecting a battery we are magnetizing that coil, and again when that coil is magnetized we are getting a battery, मतलब we are getting a voltage. वोल्टेज देके coil को magnetize किया, फिर वो coil भी हमको एक voltage ही दे रहा है, तो हम ऐसा करेंगे क्यों? हम तो इसी वोल्टेज को फिर क्यों नहीं यूज कर सकते? सपोज यहाँ से हमने जो EMF इंड्यूस किया, हम यहीं पे क्यों नहीं यूज कर सकते? तो क्या यूज ही हुआ, हमने उस एक बार बैटरी कनेक्ट करके कॉइल को मैग्नेटाइज किया, देन अगेन व्हेन दैट कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड EMF इज इंड्यूस्ड, so we are going to use that EMF which is induced across this coil. तो उससे अच्छा हम यही EMF यूज कर लेते फिर. क्लियर? So instead of using EMF of the coil, we can use EMF of the AC source only ना, because to get the EMF across this coil you have to first magnetize this. वो पूरा झंझट करने से क्या मतलब? So what we can do, जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो ना अभी, so you are paying for whatever teacher is teaching you ना, तो you are paying for that. तुम पैसे मतलब पैसे खर्च करोगे तब पढ़ रहे हो. बाद में
So once when you will become an engineer, you are going to earn the money. So तुम पैसे दे के पढ़ रहे हो, फिर पैसे ही अर्न कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में? You can earn more ना when you will become an engineer. जितना तुम पे कर रहे हो, this much you are not going to earn, you are going to earn more. So that is the difference. By increasing the number of coil ना, इसमें जो number of turns है, by changing that number of turns, we can change the EMF which is induced across this coil. Clear? So यहाँ से जो हम वोल्टेज करेंगे, यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे तो इसके क्रॉस EMF चेंज हो जाता है. So that L, the self inductance, ये जो L है हमारा, that is self inductance. It depends on the number of turns of this coil. उस coil में कितने number of turns हैं, according to that this L is value. So this L is self inductance. Clear? मैं इसको रब कर रहा हूँ. Just wait a minute. कट मत करना. Hello, can you see the board? Okay. So this is what when it is connected with DC, and that is when it is connected with AC. So the L which is used in this, that is self inductance. DC में करंट सैचुरेट हो जाता है तो उस टाइम पे बैक ईएमएफ जीरो हो जाता है इंडक्टर के क्रॉस. लेकिन एसी में जैसे जैसे करंट फ्लक्चुएट करेगा, दैट बैक ईएमएफ फ्लक्चुएटेड. So what we are getting, I is equal to, if you are using AC source, I is equal to I naught sin omega t, and what voltage we are getting, E is equal to E naught cos omega t. So in this voltage leads the current by pi by 2. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट और वोल्टेज का, so current is what sin, इसको करंट को हम साइन के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे. The current started from 0, it is variable like sin का ग्राफ, इसका पीक वैल्यू I naught है. वोल्टेज is what cos, तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, तो वोल्टेज का ग्राफ cos से स्टार्ट होगा. एंड E नॉट की वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर. दिस इज व्हाट द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, दैट I नॉट. दिस इज आल्सो I नॉट. हियर इट इज माइनस I नॉट, हियर इट इज प्लस I नॉट. नाउ इफ यू आर प्लॉटिंग वोल्टेज का ग्राफ, सो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय, ये cos का ग्राफ है तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम लाइक दिस. Clear? The peak value is what? E naught, and here it is minus E naught. So this graph you are going to get when that inductor is connected with AC source. When it is connected with DC तब तो ऐसा ग्राफ आ जाता है. Clear? उस करंट सैचुरेट होके उसके बाद वेरिएशन नहीं आएगा. उस टाइम once current is saturated, voltage across that inductor will become zero. So that is what when it is connected with DC. But when it is connected with AC, a variable, we are getting a variable current. We are connected a variable current. So the EMF which is induced across that inductor, that is also variable. हाँ, ये है डिफरेंस कि ये वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री से. So across the inductor, voltage leads the current by pi by 2. That you can get from this equation. ये हमारा करंट है, बैक EMF में पुट करके डिफरेंशिएट करोगे, you will get cos. तो I is equal to I naught sin omega t and E is equal to E naught cos omega t. मतलब when it is connected with AC source, both voltage and current are variable with respect to time, and voltage leads the current by pi by 2. Always voltage leads the current by pi by 2. Now the L which is used, EMF is equal to L di by dt. This L is self inductance. Self inductance of the coil. उस coil का जो self inductance है, that is L. It depends on number of turns. It depends on number of turns. ये जो L है सेल्फ इंडक्टेंस, ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे. इसलिए मैंने बोला ना कि वी आर कनेक्टिंग AC सोर्स एंड वी आर गेटिंग AC ओनली, बट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन चेंज द वोल्टेज. सो हाउ दैट n डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स. n हम कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू कैसे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. दैट सेल्फ इंडक्टेंस व्हिच इज कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉइल. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड दिस L सेल्फ इंडक्टेंस. तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स अलग होते हैं तो वो EMF अलग होता है. एक ही टीचर
एक टीचर के सामने देयर आर 100 स्टूडेंट्स ना, सो ही इज गोइंग टू टीच इक्वली टू एवरीवन, बट एवरीवन इज नॉट गोइंग टू गेट द सेम ना, सबका टैलेंट अलग अलग होता है ना, तो सबका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो उन पे डिपेंड करता है. सो इफ यू आर कनेक्टिंग सेम एसी वोल्टेज विद डिफरेंट कॉइल्स, सो डिफरेंट बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा तो वहां पे बैक ईएमएफ ज्यादा रहेगा. मतलब एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके सामने 100 स्टूडेंट्स हैं, तो व्हाटएवर ही इज गोइंग टू टीच इक्वली टू एवरीवन, बट एवरीवन सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट डिफरेंट मार्क्स एंड डिफरेंट परसेंटेज एवरीथिंग. सो वो उनके मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी है, मतलब उनका वो सेल्फ टैलेंट है. इन द सिमिलर वे में इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे. हाउ इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स. That's why it is called self inductance. मतलब it does not depend on that battery. L की वैल्यू बैटरी पे डिपेंड नहीं करती, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. लाइक अ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा वो कैपेसिटर का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब सपोज अपने पास इफ देयर इज अ कॉइल, तो वी हैव डन इन एम्पियर्स लॉ इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट Ni. Due to flow of current, the magnetic field which is developed across the axis of this coil is what, mu naught Ni. ये हम लोगों ने किया है एम्पियर्स लॉ में. When this coil gets magnetized, इसमें करंट फ्लो करेगा, so the magnetic field which is developed is what, mu naught Ni. और अगर n number of turns है तो it is mu naught Ni by L, where n is number of turns and L is length. अब कभी कभी उसमें स्मॉल एन रहता है, स्मॉल एन व्हाट, n by L समटाइम्स, सो दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. क्लियर? सो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड अक्रॉस दिस कॉइल. हमको मालूम है कि द ईएमएफ, द बैक ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड इज व्हाट, L di by dt. Now EMF according to Farad law, EMF is what, rate of change of flux d phi by dt is equal to L di by dt. From both the side what you can do, you can cancel this dt हमारा cancel हो जाएगा. So flux की value what we are going to get, flux is equal to Li, and flux का formula क्या होता है, magnetic field into area, B A cos theta या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. सो व्हाट वी कैन राइट, B इनटू A इज इक्वल टू Li. मुझे L का एक्सप्रेशन डिराइव करना है. अब B देखो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज व्हाट, म्यू नॉट Ni by L इनटू एरिया. इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, तो एक कॉइल का अगर एरिया A है तो n नंबर ऑफ टर्न्स में कितना हो जाएगा, Na. In a single loop, एक जो लूप है उसमें एरिया कितना है, A, and there are n number of loops, so the total area is what, Na. अगर एक ही लूप होता तो जस्ट हम A लेते, but here there are n number of loops, so it is Na is equal to what, Li. From both the side what we can cancel, we can cancel I from both the side. What we are going to get, mu naught n square A by L. This is what, self inductance of that inductor. So L is equal to mu naught n square A by L. एक काम करो, यहाँ पे use small l here, otherwise you will get confused. ये small l लो यहाँ पे, because this is what, L is self inductance, so यहाँ पे भी L तो you will get confused. ठीक है? So यहाँ पे मैं small l कर दे रहा हूँ. Small l is the length of that coil. I am using small l. Clear? So that self inductance is what, mu naught n square A by L. मतलब that self inductance depends on the number of turns के square पे. जितना number of turns ज्यादा होगा उतना self inductance उसका ज्यादा होगा. So more EMF is induced. Yeah. Or if you are putting here small n, clear? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, small n की जगह what you can put n by L. Sometimes in book it is written like this way also. Mu naught n capital N into A. That way also you can write. So don't get confused if it is written in denominator, if it is written L, और किसी बुक मतलब बुक में ऐसा भी दिया रहता है, mu naught small n capital N A. तो ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे L तो है नहीं, because यहाँ पे we are using small n. Small n is nothing but capital N by L, the number of turns per unit length, and its unit is Henry. Its unit is
इट इज मेजर्ड इन हेनरी, दैट सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने बेसिकली बैटरी कनेक्ट किया कॉइल से, कॉइल ईएमएफ इंड्यूस करा, तो हम ईएमएफ मतलब बेसिकली एक बैटरी से मैग्नेटाइज करके फिर से बैटरी ही डेवलप कर रहे हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस दैट कॉइल, अगर उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वहां पे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो अक्रॉस डिफरेंट कॉइल्स डिफरेंट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इट डिपेंड्स ऑन इट्स नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे मैंने बताया ना, एक ही टीचर है, सब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, बट डिफरेंट स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, तो सबके मार्क्स, सबके अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो उसके उनके मार्क्स अलग अलग आएंगे ना। सो अब उसमें जो नॉलेज है वो तो सबको इक्वली मिला, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? सो इन द सिमिलर वे इफ अ बैटरी, सेम बैटरी इज कनेक्टेड विद डिफरेंट कॉइल्स, एक ही बैटरी डिफरेंट कॉइल से कनेक्ट हो रहा है, तो अगर उनके सेल्फ इंडक्टेंस वेरी करेंगे तो वहां पे ईएमएफ जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी वेरी करेगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई दैट बैक ईएमएफ का जो सेल्फ बैक ईएमएफ जो हम सेल्फ इंडक्टेंस यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज एल म्यू नॉट एन कैपिटल एन ए। सो अब नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड, दिस इज व्हाट द बैक सेल्फ इंडक्टेंस एंड बैक ईएमएफ। अब जब ये बैटरी उस कॉइल को चार्ज करेगा, मतलब बैटरी उस कॉइल पे वर्क करेगा, बिकॉज इट इज अपोजिंग ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ बैटरी हैज टू वर्क अगेंस्ट इट्स अपोजिशन, दैट बैक द ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड, so that coil is going to oppose the EMF induced across it, so battery has to work against that opposition, and whatever work is done by that battery, that is what nothing but the energy stored across this coil। जैसे कैपेसिटर होता था, so कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी has to work against the capacitor, या whatever work is done to store the charge between plates of the capacitor, वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। Similar way में we can find the energy which is stored across this inductor। So energy stored across the inductor, energy stored across inductor, energy stored across inductor। So when it is connected with the battery, यहाँ पे हमारा coil है, it is connected with the battery, its self inductance is L। so energy हमारा जो power का formula होता है, power is equal to current into voltage, yeah we can add voltage into current, voltage nothing but self back EMF, that is L di by dt into I, and power is what? Work upon time, the dw by dt। क्लियर? पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, तो dw by dt is equal to that voltage into current, voltage what? Back EMF, so L di by dt into I। from both the side what we can do? We can cancel dt, so dw is equal to what? Li di। this is what the small work done, थोड़ा सा अगर करंट फ्लो कराना है, di करंट फ्लो कराने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। to get the total work you have to integrate on both the sides, if you are integrating this dw to get the total work, that is what L integration of I di, ये हमारा 0 to w पूरा वर्क, ये 0 to total current I। now integrate this I को integrate करोगे तो what we are going to get? I square by 2, तो work is equal to L I square by 2, the integration of I ना, integration of I is what? I square by 2। so this is what the energy stored across that inductor, half L I square, similar to capacitor। कैपेसिटर में एनर्जी क्या होता था? हाफ CV स्क्वायर। when a capacitor is charged by a battery, so energy stored across that capacitor is what? Half CV square। here the work done, yeah, energy, so energy of an inductor is what? Half L I square। well L is self inductance and I is current। अब करंट वहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी सैचुरेटेड है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर, और L का हमारा वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे म्यू नॉट N स्क्वायर। सो दिस व्हाट द वर्क। सो सेल्फ इंडक्टेंस का कांसेप्ट क्या है कि वी आर कनेक्टिंग अ बैटरी, व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस? बिकॉज़ इट इज फर्स्ट इट इज मैग्नेटाइज्ड, इट इज गोइंग टू यूज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इंडक्टर इज नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बाहर से कोई मैग्नेट नहीं ले आ रहे हैं, वी आर नॉट ब्रिंगिंग एनी मैग्नेट लाइक दिस, कि सपोज अगर एक मैग्नेट को ऐसा ले आते आस पास, इससे पास कराते, so then also there is a change in flux, उस मैग्नेट को मूव करा के भी हम फ्लक्स को चेंज कर सकते थे, बट उस टाइम पे वो सेल्फ इंडक्शन नहीं होता, बिकॉज उस टाइम पे दिस इंडक्टर इज गोइंग टू यूज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। हियर व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस? बिकॉज
फर्स्ट वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी, व्हेन दिस बैटरी इज कनेक्टेड इट इज मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया एंड इट इज गोइंग टू यूज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपना खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन हो रहा है, क्लियर, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF, a back EMF is induced here. And why that magnetic field is variable? Because when it is connected with a battery, यहाँ पे जो करंट होगा, if it is connected with DC, अगर हम DC से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट जीरो होगा, बाद में करंट इंक्रीज करेगा. When current increases, why it is called self inductance? Because it is going to use its own magnetic field. Why it is using its own magnetic field? Because it is connected with a battery. So at the beginning it offers infinite resistance. करंट को जाने नहीं देता, मैक्सिमम अपोजिशन शो करता है, पर धीरे धीरे उसका अपोजिशन डिक्रीज करता है तो करंट इंक्रीज करता है. तो when current increases, magnetic field across this coil increases. When magnetic field increases, magnetic flux increases. When flux increases, an EMF is induced, because that is what the Faraday's law. Whenever there is a change in flux, an EMF is induced. So यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये अपना खुद के मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहा है, अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड से ही EMF इंड्यूस कर रहा है. इट इज नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर का कोई फील्ड यूज ही नहीं कर रहा है. क्लियर? इट इज गोइंग टू यूज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. मतलब कॉइल अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड से ही EMF इंड्यूस किया. Clear? And the energy, so this battery has to work because ये back EMF है, ये oppose करता है, so that battery has to work against that opposition. तब whatever work is done, that work is stored in the form of energy. So that energy is stored across that inductor. Clear? So this is all about the self inductor. We can connect this inductor with DC और AC. DC में क्या होगा कि एक बार करंट सैचुरेट हो जाएगा तो फिर EMF बैक EMF खत्म हो जाता है. क्लियर? लेकिन एसी में क्या होता है, जैसे जैसे करंट फ्लक्चुएट होता है, एसी में भी वो जो बैक EMF होता है एक टाइम आता है जब जीरो होता है, व्हेन इट इज फ्लक्चुएटिंग ना, तो उसमें भी जीरो होता है, बट वो जीरो कांस्टेंट नहीं रहता, फिर बाद में वेरी कर जाता है. एज करंट इज फ्लक्चुएटिंग अक्रॉस दिस कॉइल, दैट EMF इज आल्सो फ्लक्चुएटिंग. सो बोथ आर वेरिएबल. सो व्हेन वी कैन कनेक्ट एसी एंड डीसी बोथ. इफ यू आर कनेक्टिंग डीसी, करंट सैचुरेट हो जाता है तो एट दैट टाइम EMF इज जीरो एंड उसी टाइम में इतना एनर्जी स्टोर कर लेगा. बट इफ यू आर कनेक्टिंग इट विद एसी, सो एज करंट इज फ्लक्चुएटिंग, वोल्टेज आल्सो फ्लक्चुएट्स, और वहां पे डिफरेंस रहता है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2. सो वी कैन कनेक्ट बोथ द बैटरीज विद इंडक्टर. वी कैन कनेक्ट डीसी एंड एसी. डीसी कनेक्ट करेंगे, करंट सैचुरेट होके बैक EMF खत्म कर देता है, बट उस टाइम पे इतनी एनर्जी स्टोर हो गई. इफ यू आर कनेक्टिंग एसी, सो करंट कभी खत्म नहीं होता, करंट कभी सैचुरेट नहीं होता, वो मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होता रहेगा. तो डीसी में ग्राफ ऐसे जाता है करंट का. इफ इट इज कनेक्टेड विद डीसी, इट्स ग्राफ इज लाइक दिस. and if it is connected with AC, its graph is like this. So DC में करंट का ग्राफ इस टाइप रहेगा, मतलब समझो DC है तो करंट ऐसे गया, ये DC, और AC रहेगा तो इस टाइप से. This is what AC, the graph of the current. Clear? ये हमारा करंट का ग्राफ है. If it is connected with DC, करंट सैचुरेट हुआ, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, बैक EMF खत्म. बट AC में क्या होता है, वो फ्लक्चुएट होता है, तो वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होता है.